Hare Krishna everyone, myself Divanshi Bansal. Today we are going to explore a powerful and inspiring story from your class 6 English book Purvi, Rama to the Rescue. In Unit 1, Fables and Folk Tales, this is the third subchapter, Rama to the Rescue. In my previous video, I have taught you the raven and the fox. If you hadn't watched that video, link is in the description. You can watch it anytime. So, the story Rama to the Rescue is full of courage and adventure, and it is the one of the most heroic rescue ever told. So, if you want to understand the story easily, or even if you want to prepare for your school exam, make sure to watch this video till the end. So, let's get started. Let us do these activities before we read. Identify the following people. How do they help us when we are in trouble? So, the first one is police. Okay. The second one, you can clearly see here, she is a doctor. Right, and here it is a fire. Okay. So, let's move to another one. I'm writing it here. Right. Let's move to another exercise, which is choose the correct option to complete the sentence. As we know, the chapter name is Rama to the Rescue. So there is a person named Rama, which is basically a Kotwal. So we will study further in the chapter what is the meaning of Kotwal and who is he. So rescue means होता है किसी को बचाना. तो it means कि रामा एक ऐसा इंसान है जो स्टोरी में हीरो का रोल प्ले कर रहा है, जो किसी को बचा रहा है. ओके. So here the question is, what is the word rescue means? To save someone. Now, work in pairs. Put a tick mark at the end of the phrase describing those who need to be rescued. Share your answer with your classmates and your teacher. So, what you have to do in this, आपको राइट करना है उन फ्रेजेस पे जिसको आपको बचाने की, रेस्क्यू करने की ज़रूरत है. सो द फर्स्ट इज़ अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर. मतलब एक इंसान जहाँ पे जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई है उसमें फंस गया है, तो हम उसको बचाने की ऑब्वियसली नीड है. सो विल पुट अ टिक. अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट. अब एक औरत मार्केट में बाज़ार में खड़ी हुई सब्जी ले रही है. सो उसको कोई ऐसी रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है ना. शी इज़ नॉट इन एनी हार्ड सिचुएशन. राइट. सो रॉन्ग. A dog who has hurt its leg, so it also need to rescue. And a tree being cut down in a forest, it also need to be rescued because लोगों ने पेड़ काट दिया, तो we need to save that tree, right? So next we have is the policeman in the story you are about to read is called the Kotwal. So जो आप पुलिसमैन पढ़ोगे स्टोरी में, that is the name is Rama, उसको कोतवाल कहा गया. Some people call him थानेदार. What do you call a policeman in your language? Share it with your classmates and teacher. अब यहाँ पे जो पुलिसमैन है उसको स्टोरी में कोतवाल कहा गया. जनरली विलेजेस में पुलिसमैन को कोतवाल ही कहते हैं. अब आपको ये बताना है कि आपके यहाँ पर क्या कहते हैं. कुछ लोग उसको थानेदार बोलते हैं, राइट. सो आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं? इन जनरल मैं बोलूँ तो वी कॉल अ पुलिसमैन पुलिस इन अवर लैंग्वेज. हम पुलिस ही बोलते हैं, राइट, एज वी लिव इन अ सिटी. नाउ imagine you are alone at home, you face a problem, answer the following questions. So, answer the following questions and share your answer with your classmates and teachers. So, you have to imagine आप घर पे अकेले हो और आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो इनमें से, तो आपको कोई आंसर बताने अपने टीचर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करने आंसर. ठीक है. विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ टू और टू वेट समवन टू हेल्प यू. मतलब आप वेट करोगे, मतलब प्रॉब्लम का, राइट. बेसिकली आप वेट करोगे किसी का या फिर उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करोगे. फर्स्टली यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम योरसेल्फ. ठीक है. कोशिश तो करोगे नहीं कि किसी का इंतज़ार कर रहे हो और उस प्रॉब्लम में, और जैसे आप बिल्डिंग में स्टक हो गए फायर की, है ना, सपोज, तो आप ये थोड़ी किसी का वेट ही कर रहे हो. डायरेक्ट खुद भी तो कोशिश करोगे कि आप गेट फाइंड करो कहाँ पर है एंड थोड़ा सा ट्राई करो. ठीक है. तो ऐसे ही आपको ये आंसर्स अपने जो है शेयर करने हैं, डिस्कस करने हैं बेसिकली अपने फ्रेंड्स एंड टीचर्स के साथ. नाउ from here, let's begin the story. Let us read. Rama to the Rescue, a folktale from Tamil Nadu. As I told you in my earlier video, basically, that folktale is a old traditional story that passes down from generation to generation. Folktale एक पुरानी कहानियाँ होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती है. तो ये
ये वाली जो फोकटेल है वो तमिलनाडु की है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो हाईलाइट दिस। स्क्रिप्ट जो इन्होंने लिखी है ये, एंड इलस्ट्रेशंस जो हैं ये रेम वेकर द्वारा बनाए गए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इन अ विलेज वन नाइट, गाँव में एक रात को, हेयर इज़ अ मैन एंड हेयर इज़ अ लेडी, राइट। तो हम इनको कंसीडर कर रहे हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ओ हम, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। अब जो मैन है वो कह रहा है ओ हम, यू कैन सी हियर, ये यॉन कर रहा है यानी कि उबासी ले रहा है। तो मतलब ये कह रहा है अरे बहुत थक गया हूँ, आज तो बहुत कठिन था, यानी कि वो अपने काम से जहाँ से आया वो उसके लिए बहुत कठिन था, राइट। बहुत मेहनत करके आया वो घर पे। एंड हिज वाइफ इज सेइंग टू हर, नाउ आई एम फीलिंग सो स्लीपी। अब वो लेट जाता है और कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। व्हाट्स द मैटर, हु, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब उसकी जो वाइफ है वो श करने को बोलती है, मतलब उसके जो हस्बैंड है ना वो देखता है कि क्या बात हो गई, तुम किसकी क्या देख रही हो, तुम किसकी तरफ देख रही हो। उसकी जो वाइफ है उसको चुप कराती है, मतलब कि उसको चुप करा रही कि चुप हो जाओ ज़रा। देन शी सेड लिसन, यानी कि सुनो। उसको बता रही है कि देखो सुनो, उसको कहीं से कुछ आवाज़ वगैरह आ रही है तो वो उसको अलर्ट कर रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, somebody is trying to get in। अब जो हस्बैंड है, देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक डायलॉग बॉक्स होता है और ये जहाँ पे भी पॉइंट करता है ना उसको बताता है कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड की तरफ पॉइंट आउट किया गया है, तो हस्बैंड बोल रहा है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नाउ आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइस हैज़ स्टॉप। नाउ द वाइफ इज सेइंग, मुझे लगता है कि जो वो इंसान है जो आने की कोशिश कर रहा है वो अंदर आ चुका है, क्योंकि अब आवाज़ आनी बंद हो गई है। लाई डाउन, डोंट लुक, द हस्बैंड इज सेइंग, बिकॉज इस पर पॉइंट आउट किया गया है कि लेट जाओ, उधर मत देखो। नाउ इट इज़ अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। नाउ द जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि पक्का कोई चोर होगा और इसे जो है ना ये रामा से बच के यहाँ आया होगा। रामा कौन है, कोतवाल, राइट। तो वो उससे बच के आया होगा, ठीक है। रामा वॉज द विलेज कोतवाल, यानी कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, बेसिकली अ पुलिसमैन, ठीक है। वो विलेज का यानी गाँव का कोतवाल है, तो वो उससे बच के आया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस। सर्कल द ऑड वन, द कैरेक्टर्स आर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन। सो आपको ऑड वन सर्कल करना है, इसमें चिल्ड्रेन है ना, हम वाइफ की बात कर रहे हैं, हस्बैंड की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रेन इज द ऑड वन। हु एंटर द हाउस, रॉबर एंटर द हाउस। ओके, नाउ व्हाट शुड वी डू, द वाइफ इज सेइंग, अब हम क्या करें। नाउ आई विल टेल यू, लिसन, हस्बैंड कहता है रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। मीन वाइल वॉइसेज दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल स्लीप। अब ये जो चोर है वो ये सोच रहा है, अभी देखो ये ऐसे बबल शेप में बनाया गया ना, एंड ही इज़ थिंकिंग, क्योंकि उसके साथ तो कोई है नहीं तो वो सोच ही रहा होगा, किसी से डिस्कस तो कर नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। तो मीनवाइल का मतलब इसी दौरान जब वो लोग बात कर रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो जो चोर है वो सोचता है कि वॉइसेस जो है ना आ रही है, मतलब जो अंदर लोग हैं हस्बैंड एंड वाइफ वो जागे हुए हैं, तो मुझे उनके सोने तक का वेट करना पड़ेगा, तभी मैं अंदर जाके चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी। वो खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा होगा, ठीक है। एंड यू कैन सी द सिनेरियो ऑफ दैट विलेज, राइट, मतलब बेसिकली द हाउस। They are saying something perhaps. They are talking about their money. I had better listen closely. अब ये जो चोर है वो कान लगा के सुन रहा है कि क्या पता ये पैसों के बारे में शायद बात कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा पास जाना पड़ेगा ध्यान से सुनने के लिए, क्योंकि भाई उसका मोटिव है पैसे चोरी करना है, तो ये सोच रहा है कि क्या पता पैसों की बात कर रही हूँ कि कहाँ रखा है या कुछ है, तो मैं पास जाके सुनता हूँ कि किस बारे में ये बात कर रहे हैं। What should we name a child? अब वाइफ कह रही है हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। अब देखो आप यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। बेसिकली लास्ट जब हस्बैंड वाइफ की बात हुई थी तो हस्बैंड ने कहा था रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब बच्चा बीच में कहाँ से आ गया, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। इफ़ ही इज़ अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा। तो हस्बैंड कह रहा है कि अगर वो बच्चा लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि रामा कौन है, कोतवाल। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस बच्चे का नाम कोतवाल वाला नाम ही क्यों रखा गया है, ठीक है। यू कैन थिंक।
Okay, now next is Rama. Yes, that's a good name. The wife is saying Rama. हाँ, ये तो बड़ा अच्छा नाम है, यही रखेंगे. Now, when he is in the house, I will call out softly to him, Rama, Rama. अब अंदर से आवाज़ आ रही है कि जब वो जो है घर के अंदर होगा ना, तो मैं उसको बड़ी प्यार से बुलाऊंगी, रामा रामा. मतलब अपना बच्चा खेल रहा होगा घर के अंदर, या कुछ भी कर रहा होगा घर के अंदर ही होगा, तो उसको बड़े प्यार से मैं जो है रामा रामा करके बुलाया करूँ. ठीक है. द वाइफ इज सेइंग, यानी चोर जो है यहाँ खड़ा हुआ सुन रहा है सब बात. ठीक है. नाउ लेट अस डिस्कस. राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ. क्या जो मैन है उसने अपनी वाइफ को प्लान बता दिया है, तो दिस इज़ ट्रू. उसने बता दिया तभी तो वो एकदम से बच्चे की बात बीच में लाए हैं. राइट. सेकेंड इज द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे kept their jewels. अब क्या जो चोर है वो ये जानना चाहता है कि उन्होंने ज्वेल्स कहाँ रखे. नहीं, ज्वेल्स तो उसने ज्वेलरी की तो बात ही नहीं करी है, उसने किसकी बात करी है, उसे तो मनी जानना है. तो दिस इज फॉल्स. ओके. नेक्स्ट. बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड. अब वो कहता है हस्बैंड कि क्या होगा अगर वो यार्ड में हुआ. यार्ड होता है बेसिकली एन ओपन एरिया विदाउट रूफ, है ना, बिना छत के जो खुला एरिया होता है उसको बोलते हैं यार्ड. तो कहता है अगर वो बाहर हुआ तो क्या करेंगे, मतलब तो कैसे बुलाओगे उसको. देन आई विल कॉल आउट लिटिल लाउडर, रामा रामा. तो वाइफ कहती है तो मैं अपने बच्चे को ना थोड़ा तेज़ी से बुलाऊंगी, रामा रामा. ठीक है. नाउ द thief is thinking, I wish they would stop this silly game and talk about their money instead. अब वो कहता है मैं ये वो कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि अपना जो ये सिली गेम ये जो खेल रहे हैं अपने बच्चे को कैसे बुलाएंगे, क्या करेंगे, बंद कर दें और भाई ये बता दें इन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा है, उस बारे में, पैसे के बारे में बात करें. क्योंकि मैं तो बोर हो रहा हूँ ना बेसिकली, उसे तो पैसा चाहिए है ना, उसको तो उस बारे में बात करनी. तो वो ये सोच रहा है. और फॉल स्लीप एटलीस्ट, नहीं तो कम से कम सो ही जाएँ, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा इस टाइप से. तो कह रहे कम से कम सो ही जाएँ, बट लेकिन ये अपना सिली गेम बंद करते हैं. बट माई डियर, नाउ द हस्बैंड इज सेइंग, बट माई डियर व्हाट if the boy is not in the house or not in the yard but in the street. बट वो कहता है बट मेरी प्यारी पत्नी बेसिकली, अगर वो बच्चा जो है हमारा वो ना घर में हुआ ना यार्ड में हुआ और बल्कि सड़क पे हुआ, ठीक है, स्ट्रीट में हुआ, बाहर हुआ, तो तुम उसको कैसे बुलाओगी. सो द वाइफ इज सेइंग ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. तो कहती है मैं बहुत तेज़ चिल्लाऊंगी तब उसको बुलाने के लिए. एंड देन शी कॉल आउट रामा रामा. आई एम नॉट सेइंग इट लाउडर बिकॉज अगेन मतलब वो बहुत तेज़ बोल रहे चिल्ला के रामा रामा. ठीक है, वो बहुत तेज चिल्लाने लग जाती है. एंड रामा द कोतवाल लिसन्स. अब देखो उसको आवाज़ आ रही है ना कैसे कि इस घर से कोई रामा रामा करके बुला रहा है. एंड ही रैन टूवर्ड्स दैट हाउस. वो भगा भगा जाता है उस घर की तरफ. ठीक है, अब देख सकते हैं इमेज. नाउ लेट अस डिस्कस. Along with your classmates, call out the name Rama softly, loudly and very loudly. अब आप ये अपने classmates के साथ ही परफॉर्म कर सकते हो. पहले आप आराम से बोलो रामा रामा, फिर उसके बाद थोड़ा तेज़ बोलो एंड देन बहुत तेज़ बोलो. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा. अब अगर आपने स्टोरी पता है तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको भी नहीं पता होगा, बट आप जनरल गेस कर सकते हो कि रामा चला गया होगा एंड होपफुली उसने चोर को पकड़ लिया होगा. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. आई थिंक रामा द कोतवाल विल हेयर हिज नेम एंड कैच द थीफ. मुझे लगता है कि रामा जो कोतवाल है उसने अपना नाम सुन लिया होगा और चोर को पकड़ लिया होगा. नाउ लेट्स स्टडी फर्दर. Rama, the village kotwal, ran to his house from which he heard his name being called. अब वो रामा जो है विलेज का कोतवाल वो भागा हुआ उस घर की तरफ जाता है जहाँ से उसको आवाज़ आई थी अपने नेम की. ठीक है. ओह ओह some thief has dug his way into this house. अब वो जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे इस घर के यहाँ पे गड्ढा मतलब छेद कर दिया, किसी ने होल कर दिया है एंड यहाँ से पक्का कोई चोर घुसा होगा. ज़रूर उस चोर ने डग करके वहाँ से अंदर गया होगा. सो इस पिक्चर में वो भी अंदर जा रहा है. नाउ एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चाटर. अब ये जो चोर है वो कहता था मतलब अच्छा है इन्होंने जो है कम से कम अपनी जो चैटर मीन्स जो बातें थी वो बंद करती हैं. नाउ यहाँ से आप देख सकते हो रामा जो है वो एंटर कर चुका है अंदर. ओके. नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड
अब एंड मतलब वो कहता है कि अब बहुत जल्दी ये बातें बंद कर दी हैं तो बहुत जल्दी ये सो जाएंगे। एंड ये सब कौन सोच रहा है? चोर सोच रहा है कि अब वो मन मन में कि हाँ चलो अब इन्होंने बातें बंद कर दी तो ये फाइनली सो जाएंगे। एंड हाँ मतलब वो थक चुका है कि हाँ चलो होने वाला है सब कुछ मेरा वो, ठीक है ना। पीछे से रामा आता है एंड ही सेड यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एंड आपको पॉइंट आउट भी उस पर रामा पे ही किया गया। सो पीछे जाके पकड़ लेता है एंड ही the husband is saying it's Rama, he heard us, ये रामा है और इसने हमारी आवाज़ सुन ली। Now the wife is saying the plan work, we are safe, तो हमारा जो प्लान था, हमारी जो ट्रिक थी वो काम कर गई और हम बच गए। The man and his wife by their cleverness had saved themselves from being robbed, और ये जो आदमी था और उसकी जो वाइफ थी उनकी चालाकियों ने, उनकी चालाकी तो थी, उन्होंने की प्लान बनाया। वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग होपलेस, वो डरने की बजाय वो उन्होंने क्लेवरनेस दिखाई और अपने आप को चोरी होने से, मतलब अपना घर चोरी होने से बेसिकली बचा लिया। ठीक है, यहीं पर आपका चैप्टर एंड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। अभी इसके आगे हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करते हैं। सो द मॉरल इज द स्टोरी टीचेस अस that in difficult situations we don't always need strength. Sometimes a calm mind and clever thinking can save the day. ये स्टोरी हमें सिखाती है हमेशा डिफ़िकल्ट सिचुएशन जब भी आए, आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करो तो हमें हमेशा स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती कि कोई पावरफुल इंसान चाहिए जो लड़ेगा, बहुत स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी शांत दिमाग चाहिए होता है और क्लेवर थिंकिंग चाहिए होती है उस दिन को अपने बेसिकली अपनी लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि आप कभी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करें तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग होपलेस, बिल्कुल ही होपलेस हो जाने की बजाय, डरने की बजाय आप अपना दिमाग का शांति से यूज़ करें एंड उस सिचुएशन को फेस करें। ओके, so the couple didn't panic, instead they used their intelligence and outsmart the thief. और जो कपल थे ये बिल्कुल भी डरे नहीं, इन्होंने पैनिक नहीं करा चोर आ गया, और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस थीव को ही बेवकूफ़ बना दिया। कैसे उन्होंने प्लान करा कि बच्चे का नाम ये रखेंगे एंड थीव को ही बेवकूफ़ बना दिया। उसे लगा ये सब बकवास है और उसके अगेंस्ट ये प्लानिंग हो रही थी और फिर ये बच गए। ठीक है, सो अब हम इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छी जो है लेसन लगा होगा क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ सीखने को। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स। यू हैव टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स ऑफ इन कॉलम बी। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग टू योर क्लासमेट एंड टीचर्स। ओके, नाउ कॉलम ए इज द फर्स्ट वर्ड इज वंडर। वंडर होता है अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ओके, तो 6 आ जाएगा, मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। Second is yard. Yard means an area outside a building. ठीक है, और a area without roof. Now, third one is chatter. Chatter means होता है talk for a long time about unimportant things. मतलब जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों के बारे में बहुत लंबे टाइम तक बातें करना। ठीक है, now next one is instead. Instead means होता है in place of someone or something. मतलब किसी की जगह पे या किसी चीज़ की जगह पे उस चीज़ को रखना। ठीक है, इससे यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्लोजली। क्लोजली मीन्स केयरफुल। ओके, इसको ध्यान से। नाउ परहैप्स मीन्स मे बी, सो हियर इट इज फिफ्थ। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। मेन कैरेक्टर, आप इसको बताना है मेन कैरेक्टर क्या है, सेटिंग क्या है, अदर कैरेक्टर्स एंड सो ऑन। मेन कैरेक्टर्स इसमें है मैन, वाइफ एंड रामा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी। सेटिंग में आ जाता है आपका विलेज। ये सेटिंग मतलब कि कहाँ हुई गई है, ये विलेज के अंदर जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अदर कैरेक्टर्स में थीफ आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आप लिख सकते हो कि जो है प्रॉब्लम क्या था, थीफ था, राइट। और यू कैन राइट इट लाइक दिस, द थीफ वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट। उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जो चोर था वो पैसे चुराने की जो है लोकेशन ढूंढ रहा था कि पैसे कहाँ रखे हैं, मुझे वहाँ से मिल जाए, उसकी प्रॉब्लम है ना। सॉल्यूशन में यू कैन राइट इट लाइक दिस, द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा द विलेज कोतवाल एंड ही हर्ड हिज नेम एंड गॉट द थीफ। सॉल्यूशन में क्या करा, उसकी वाइफ ने जो उन्होंने मतलब बेसिकली प्लान बनाया
और रामा को बुलाया। कोतवाल जो था विलेज का, उसने अपना नाम सुना रामा ने और चोर को पकड़ लिया। ओके, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. Read the following lines and then answer the questions that follow. First, men. What's the matter? What are you looking at? Wife. Shh, listen. Men. Somebody is trying to get in. Wife. I think he has gotten. The noise has stopped. So here it is written. यहाँ पे आपको एक वो दिया गया है, इसमें आपको इन क्वेश्चन के बेस आंसर करना है. ठीक है. फर्स्ट, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन. अब जो आदमी था उसमें स्टोरी में, उसने ऐसा क्यों बोला कि क्या मैटर है ना, क्या बात हो गई, तुम उधर क्यों देख रही हो. बिकॉज he noticed that his wife's behavior has changed. She is focused on something alarming. Means कि उसने इसलिए बोला कि क्या बात हो गई क्योंकि उसकी जो वाइफ थी ना, वो उसने नोटिस करा अपना वाइफ का बिहेवियर कि उसका चेंज लग रहा है, वो कहीं और देख रही है और उस इंसान को मतलब अपने हस्बैंड को इग्नोर कर रही है. ठीक है, उसका जो फोकस है वो कहीं और है. सो इसलिए उसने पूछा कि क्या बात हो गई, तुम कहाँ देख रहे हो. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. द वाइफ सेज लिसन. व्हाट डज द वर्ड मीन्स. इसका मतलब क्या होता है, साइलेंट, टू बी साइलेंट. हाउ कैन यू टेल दैट हिज वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली. अब आप कैसे बता सकते हो उसकी वाइफ तो थी, वो बहुत ध्यान से सुन रही थी आवाज़ों को. द वाइफ कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव द फैक्ट दैट शी वॉज लिसनिंग केयरफुली. क्योंकि उस वाइफ जो बहुत कंसर्न थी, उस आवाज़ें सुन रही थी ना, बहुत कंसर्न थी उसको लेके, उसको चुप करा रही थी. एंड लास्ट में बोलती है ना, लास्ट इन द सेंस उसमें लास्ट में बोलती है कि द नॉइस हैज़ स्टॉप. मतलब वो बहुत देर से सुन रही थी, फिर एकदम से आवाज़ बंद हुई, तो ये दिखाता है कि वो कितनी ध्यान से सुन रही थी. ओके, नेक्स्ट. रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच he heard his name being called. अब जो रामा था विलेज का कोतवाल, उसने वो भाग के उस घर की तरफ गया जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी उसके नेम की. रामा. ओह some thief has dug way into this house. अब रामा ये बोलता है कि वो किसी चोर ने इनके घर में डग कर दिया है. नेक्स्ट, इसमें आपको इसके बेस पे क्वेश्चंस के आंसर देना है. fill in the blanks with correct word from the given lines. First is the villagers caught the thief and took him to the कोतवाल. विलेजर ने उस थीफ को पकड़ा और उसको कहाँ ले गए, कोतवाल के पास. नेक्स्ट वी हैव इज टू. इसमें से आपको फिल करना है ना, सो यू कैन फिल दिस रामा. ठीक है, और कोतवाल एनी वन. नाउ सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डू द वर्ड्स ओह शो हियर. अभी जो आपके वर्ड्स हैं क्या दिखा रहे हैं, सरप्राइज है ना. एंगर तो नहीं हो सकता, पेन भी नहीं हो सकता, हैप्पीनेस भी, कोई उन्हें खुशी थोड़ी होगी कि चोर है. मतलब वो उन्हें डग करा हुआ देखा तो वो क्या दिखा रहा है, सरप्राइज हो गया वो कि यहाँ पे किसी ने होल कर दिया. नाउ गिव वन रीज़न व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep. आई थिंक इससे पहले क्वेश्चन रह गया ये वाला. हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब. आप कैसे बता सकते हो कि कोतवाल जो था वो अपनी जॉब में अच्छा था, है ना, अपनी जॉब के प्रति ईमानदार था, अलर्ट था. सो यू कैन से इट लाइक दिस. ही केम क्विकली वंस ही हर्ड हिज नेम. दिस शोज दैट रामा द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब. जैसे ही उसने अपनी नेम की आवाज़ सुनी कि मुझे कोई बुला रहा है, रामा रामा, तो वो भगा हुआ उस घर की तरफ चला गया. ठीक है, वो अलर्ट था कि कोई बुला रहा है, ये नहीं कि छोड़ दे उसने, अरे बुला रहा होगा कोई ऐसी. ठीक है, वो अलर्ट था, वो उस घर की तरफ गया. ओके, सो ये दिखाता है कि वो अपनी जॉब में कितना अच्छा है. नेक्स्ट वन इज गिव वन रीज़न वाई द मैन एंड हिज वाइफ. जो मतलब जो वो आदमी हस्बैंड वाइफ थे वो क्यों नहीं सो पा रहे थे. सो द स्ट्रेंज साउंड कमिंग फ्रॉम देयर होम शो दैट द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep. जो उनके घर से स्ट्रेंज आवाज़ आ रही थी, है ना, उन्हें लग रहा था कि कोई चोर घुसा है, इस वजह से वो सो नहीं रहे थे. ठीक. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन. डिड इट हैपन. तो अब जो चोर था उसकी विश क्या थी और क्या उसकी विश पूरी हुई या फिर नहीं. थीफ की विश क्या थी कि वो जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो पैसे के बारे में बात करें और फिर वो पता चल जाए कि पैसे कहाँ रखे हैं और वो उसको चुरा ले. बट तो आप लिख सकते हो थीफ विशेस दैट दे टॉक अबाउट देयर मनी. है ना, थीफ की इच्छा थी व्हेन दे फॉल asleep. एंड क्या ये पूरी हुई, नो इट डिडंट हैपन. उन्होंने तो बात ही नहीं की थी, वो तो अपने बच्चे की बात कर रहे थे. राइट.
हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल. अब कैसे जो मैन और उसकी वाइफ थी उन्होंने कोतवाल से हेल्प ली. तो कैसे ली थी उन्होंने हेल्प. उन्होंने जो है ट्रिक करी थी, मतलब ट्रिक प्लान करा था एंड उन्होंने अपना प्लानिंग करके जो है कोतवाल को बुलाया एंड कोतवाल आया और उसने जो है फिर अपना हेल्प ली हस्बैंड एंड वाइफ ने कोतवाल से. ठीक है. डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व और प्रॉब्लम्स. वाई डू यू से सो. आप लिख सकते हो येस क्लेवरनेस कैन हेल्प सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स. क्योंकि क्लेवरनेस से ही क्या हुआ. अब इसका आप रिप्लाई करके पूरा आंसर लिख सकते हो कि ऐसा क्यों कह रहे हो आप. क्योंकि इसमें हस्बैंड एंड वाइफ ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डरने के बजाय पैनिक करने के बजाय उन्होंने क्लेवरनेस करी है ना. तो उन्होंने शातिर दिमाग लगाया, अपना प्लान करा और बहुत ही आउटस्मार्ट करके थीफ को ठीक है चकमा दे के उसको प्लान करा और मतलब अपने बच्चे का नाम भी रामा ही रखा. बेसिकली उन्होंने जो है क्लेवरनेस दिखाई है ना. काम माइंड उन्होंने यूज़ करा. तो काम माइंड क्लेवरनेस ये सब हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ठीक है. लेट अस लर्न. स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स अ थीफ, दे आर अवे. नाउ यू हैव टू आपको वर्ड्स हाईलाइटेड वर्ड्स जो है इस लाइन में पढ़. ठीक है. यहाँ पे आपको फिल करने हैं बेसिकली जो वर्ड्स है ना ये. The highlighted words given in the above sentences have one letter missing in each. इसमें एक एक लेटर मिसिंग है. एब्रीवेशन जैसे यूज़ करेंगे ना आई के बाद एम, तो यहाँ के लिखोगे आई एम. एक सेकेंड, लेट मी राइट इट लाइक दिस. आई के बाद से ऑस्ट्रॉफी एम लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे आई एम. ठीक है. सो फर्स्ट वन में आ जाएगा आई एम फीलिंग सो स्लीपी. नेक्स्ट इट्स अ थीफ. इट्स को कैसे लिखते हैं, इट इज़ अ थीफ. नेक्स्ट है दे आर अवेक. एक सेकेंड. नेक्स्ट है दे आर अवेक, तो आप लिखोगे दे आर अवेक. ओके. यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसिंग लेटर्स को हम अपोस्ट्रोफी से दिखाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स. 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू. आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स करे हुए हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दीज वर्ड्स. ठीक है. यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स सेंटेंसेज ऑफ योर. ठीक है. चलो यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. लाइक व्हाट इज़ की व्हाट इज़ लिखी है, आई विल यहाँ पे मैं आपको लिख दूँगी आई विल. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा आई हैड, वी विल, दैट इज़, वी आर, डू नॉट, यू विल, मस्ट हैव. ठीक है. नाउ यू हैव टू फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स. You have to form sentences using these words. Contracted words means होता है कि आपने इसको छोटा करके लिखा हुआ है. what is को what's लिखा हुआ है, तो ऐसे करके हम इसको contracted लिख देते हैं words को, बट प्रोनाउंसिएशन में हम इसको what is ही बोलते हैं. ठीक है. एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको पूरा लिखते हैं. सो सेंटेंस फर्स्ट बन सकता है what is यूज़ करके what is your name. Second one is I will meet you tomorrow. You can make any sentence using these words. ठीक है. मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दी. नेक्स्ट है आई हैड लव टू गो टू ऑन वेकेशन दिस समर. ठीक है. मुझे बहुत प्यार है कि मैं वेकेशन पर जाऊँ इस समर. फोर्थ है वी विल गो फॉर अ पिकनिक. ओके. नेक्स्ट इज दैट इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग. वी आर गोइंग टू शिमला दिस वीकेंड. ओके. नेक्स्ट इज आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड. You will enjoy the trip. Next is 9th, must have का बना सकते हो. She must have forgotten her phone at home. वो अपना घर पे ही अपना फ़ोन भूल गई. Okay. Now next is study the highlighted words and the words in the brackets in the following sentences from the story. अब आपको ये highlighted words जो हैं उनको पढ़ना है एंड देन उसके बाद उन words को brackets में लिखना है. ठीक है. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. एम फीलिंग ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ठीक है. तो यहाँ पे टेंस आपने पढ़ी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया गया है. ओके. नाउ व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब आप किसकी तरफ क्या देख रहे हो. ठीक है. somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है. they are saying something, वो कुछ कह रही हैं. perhaps they are talking about their money, शायद वो अपने पैसे के बारे में बात. Now choose the correct option. These sentences 1 to 5 refer to the actions that are
इनमें से आपको 3 में से चूज़ करना है. आर गोइंग on at the time of speaking happen in the past will take place in future. as we very well know यहाँ पे किसका यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का. तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसी टाइम पे बोले गए. नेक्स्ट वी हैव इज फ्रॉम हियर, यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव बोलो या फिर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलो, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग. Okay, verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the in the present progressive tense. ठीक है, जिसमें हम am verb की फर्स्ट फॉर्म है ना, am और sunny का यूज़ करते हैं. ठीक है, am जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब होता है, is am. ओके, सो fill in the blanks to complete the following sentences. ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर है पता होगा, is am are प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ये जो है वो फॉर्मेट होता है. ठीक है, फर्स्ट वन है आई डैश इन ग्रेड एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड, माई फ्रेंड इज रीडिंग, वी आर प्लेइंग. ठीक है, यहाँ पे ऐसा रहेगा ना, वी आर प्लेइंग. इसको जो प्लस प्लस है आप इसको कंबाइन करके लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम. जो टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं. सो आप जो है इसको पूरा कंबाइन करके लिख देंगे. ओके, आर सिटिंग. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन. नाउ नेक्स्ट यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद present progressive form of words. You can see in the picture that the boy is sitting on a wheelchair, here it is sitting on a bench, they are playing and she is plucking a flower. Okay, so Govind and Anu are playing football. यहाँ पे लिख दूंगी मैं. ठीक है, are playing. Okay, then Prema is touching flowers. Next is Anil. अनिल में क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे अनिल क्या कर रहा है, इज होल्डिंग द स्कोर बोर्ड. हियर ही इज होल्डिंग स्कोर बोर्ड. ओके, नेक्स्ट द मदर इज रीडिंग अ बुक. ओके, बेंच पे वो बैठी हुई है मदर उनकी और बुक पढ़ रही हैं. द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो स्काई में फ्लाई कर रही हैं एंड द बॉय इज ट्राइंग टू कैच द बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू. आई हैड बेटर लिसन क्लोजली. नेक्स्ट इज वी व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम. थर्ड इज देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. तो आपको स्टोरी के बेस कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. ठीक है, कि मैं अच्छे से जो है बेहतर तरीके से पास जाके सुन सकता हूँ केयरफुली, है ना. एंड अगर वो घर के अंदर होगा तो मैं उसको बहुत प्यार से सॉफ्टली बुलाऊंगी, है ना. तो वाइफ कह रही थी ना उसकी हस्बैंड की. देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. अगर वो स्ट्रीट पे होगा तो मैं उसको बहुत तेज़ी से लाऊंगी. तो आपको इसमें फिल करना है. सो आई हैड बेटर लिसन क्लोजली. हाउ डज ही लिसन, तो आपको बस केवल वर्ड फिल करना है. यहाँ पे कहेगा क्लोजली, है ना, बहुत पास जाके मुझे सुनना पड़ेगा. कैसे सुनना पड़ेगा, बहुत पास जाके. When he is in the house, I will run out softly to him. मतलब जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसको बहुत प्यार से धीरे से आवाज़ दूँ. ठीक है, उसको पुकारूंगी बहुत धीरे से. How does she call out, वो कैसे बुलाएगी उसको. Then write it here softly, बहुत प्यार से. Next, then I will call out very loudly. और अगर वो बाहर होगा तो मैं उसको बहुत तेज़ी से बुलाऊंगी. How does she call out loudly, कैसे बुलाएगी वो, बहुत तेज़ी से चिल्ला के. राइट, words that give more information about the verb such as how, when, where, etc. are called adverbs. Okay, fill in the blanks with suitable adverb from the given box below. There are 2 extra words that you do not need. ठीक है, इसमें आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में आपको ये फिल करने हैं. एंड 2 वर्ड्स जो है आपको एक्स्ट्रा दिए हैं उनको आपको मतलब इग्नोर करना. ठीक है, सो फर्स्ट ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम क्विकली. ओके, देन वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली, हरिडली. उसने कैसे करी, क्विकली. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज
द कार मूव स्मूथली अलॉन्ग द हाईवे, बहुत ही स्मूथली वो जो कार है वो हाईवे पे चल. ओके. द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटिफुली. शोभा डांस gracefully. Next one is Rohit left the house hurriedly. Okay. Rap hurriedly मतलब जो उसने घर छोड़ा बहुत जल्दबाजी. Okay. Next we have fill in the blanks with suitable adverb from the given box below. There are two extra words that you do not need. ठीक है, इसको अगेन ये फिल करना है. ठीक है, पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, एडवर्ब फिल करनी है एंड दो वर्ड्स एक्स्ट्रा है. Honestly, brightly, peacefully, sweetly, angrily, slowly, tirelessly. Once upon a time, in a small forest, animal live peacefully. Then we have the wise old tortoise moved slowly, but always won the race against the proud rabbit. है ना, हमेशा वो जो आपने सुनी है ना रैबिट एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी, यहाँ पे जो बहुत प्राउड करता है रैबिट कि हाँ मैं तेज़ भागता हूँ, वो स्लो भागता है, फिर भी कौन जीतता है एट द एंड? टॉर्टॉइस. ओके. द एंड्स वर्क टायरलेसली. ठीक है, कैसे काम कर रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा टायरलेस होकर काम कर रहे हैं. गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, मतलब जैसे वो अपने चींटियाँ जो होती हैं ठंड के लिए अपने खाने इकट्ठा करती हैं ना, साइड स्टोर कर लेती हैं, तो वो टायरलेसली लगातार काम कर रहे हैं. द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल ऑनेस्टली गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक. वो ऑनेस्टली से काम कर रहा है, मतलब रूल करा हुआ है. किंग लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, सो उसको सबको मौका दे रहा है, ठीक है, बोलने का. द बर्ड सैंग sweetly, making everyone in the forest happy. Now, next one you have is study the following sentences from the story and choose the correct option. First one is, oh hum, what a hard day it has been. Second, oh, at last they have stopped their chatter. Third is, what should we do? Fourth is, what should we name our child? You have to fill the sentences using these two words. Okay, which one is correct? You have to take it. Sentence word जो है क्या दिखा रहा है? एक्सप्रेस ऑफ टायर्डनेस, कि वो कितना थक गया है इंसान उस कठिन भरे दिन से काम करके, रात को जब आया बहुत थक चुका है तो वो टायर्ड. सेंटेंस टू, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर, मीन्स वो क्या है? रिलीफ है, उसको रिलीफ मिल रही है, कम से कम उन्होंने अपनी चैटर बन गई. सेंटेंस 3 and 4 इन दोनों में ही क्या है? व्हाट शुड वी डू. यहाँ पे आपको वैसे भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है. एंड वॉट, ये सब WH फैमिली का हम यूज़ कब करते हैं? कोई क्वेश्चन पुट करते हैं. Okay. Next you have is punctuate the following sentence and write whether they are exclamatory और interrogative sentence. आपको बताना है कौन सा sentence exclamatory sentence है और कौन सा interrogative sentence है. I hope आपको पता होगा exclamatory और जो interrogative, मतलब जब भी हम कोई surprise या sad ऐसी कोई feeling दिखा रहे हैं. interrogative होता है जब भी हम कोई question put up करें. फर्स्ट है wow, what an intelligent man he is. तो wow से पहले आपका यहाँ पे एक सेकेंड एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, तो फर्स्ट में आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क. यहाँ पे आप कॉमा को हटा के ऐसे लिखो, ठीक है. देन ओ क्या दिखा रहा है? ओ हाउ बिग द होल इज़, कितना बड़ा होल कर दिया वहाँ पे, तो वो सरप्राइज है काइंड ऑफ, तो वो क्या दिखा रहा है? सरप्राइज को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है. तो ओ के बाद आप ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करोगे. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स? क्वेश्चन मार्क, आपको पसंद है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी? अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन, means interrogative sentences. Last two are interrogative and first two are exclamatory. Okay, so क्या पढ़ सकते हो? Sentences that express a strong feeling are called exclamatory sentences. They are marked with this exclamation mark. And then sentences that ask questions are interrogative, called interrogative sentences, और इनको हम question mark से, ठीक है. So next we have is you will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. ठीक है, तो मतलब आपको अपनी सिक्योरिटी गार्ड की सुननी है, मतलब उसने जो अनाउंसमेंट करी है अपने पड़ोस में, एंड यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स. ठीक है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर, ठीक है. सो द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, को बताना है इसमें जो है रेफर कर रहा है पेज नंबर 38 को, दैट रॉबरी हैज़ बीन हैपनिंग इन दैट एरिया. ही एडवाइज एवरीवन, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे? रॉबरी, ठीक है. नेक्स्ट इज ही एडवाइज एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल दैट द एडल्ट्स
ही एडवाइस एवरीवन, उसने एडवाइस करा सबको कि सेफ रहो, और बच्चों को कहा कि वो जैसे ही किसी मुसीबत में फंसे या कुछ भी डिफरेंट हो उनके साथ, ठीक है, कोई भी फेस करें वो चीज़, तो अपने एडल्ट्स को इन्फॉर्म करो. दे शुड नॉट फॉरगेट दैट सेफ्टी इज़ द मेन थिंग. ही आस्क्ड देम टू कॉल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 200, है ना. पुलिस का नंबर क्या होता है, 100. तो कभी भी उन्हें इमीडिएट हेल्प चाहिए हो तो 100 नंबर पर कॉल. ओके, then you have to speak these sentences, these contractions basically, ठीक है, with your classmates. And this is the I think last exercise, so let's discuss it. Discuss in pair. Why do you think it is important for people to keep their house and themselves safe? टिक करना है आपको. क्यों लगता है आपको कि लोगों को ज़रूरत है अपने हाउस को, अपने आप को सेफ रखने की? तो आपको सुटेबल जो आपको लगे कि हाँ ज़रूरत है, उस पर आपको टिक करना है. टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, यस. टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट सेफ, क्या आपको अपने फैमिली मेम्बर्स और पेट्स को सेफ रखना चाहिए? यस. टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, यस, एक्सीडेंट्स रुकने चाहिए. टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, अब आप डॉक्टर को कैसे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं ना, कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज़ रॉन्ग. टू स्टॉप रॉबरी, यस. टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी जान चली जाए जिससे, राइट. आपको बहुत ज़्यादा वो लेने की जरूरत है. ऑफकोर्स इट इज़ अ वो है कि आपको पे तो करनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट. टू सेव मनी, नो, इट इज़ नॉट दैट मच. इसमें आपको पूछा था कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घर के लिए, आपकी जान को बचाना, ठीक है. सो यहीं पे आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. आई नो ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आपकी जो क्लास 6 की पूरी बुक है, इसमें बहुत सारी चैप्टर बहुत छोटू छोटू से हैं, क्योंकि ये यूनिट 1 है, फेबल्स एंड फोकटेल्स. दैट मीन्स शॉर्ट स्टोरी होगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यहीं पे होती है आपका सारा ये यूनिट 1 कंप्लीट. If you enjoyed this story and learned something new, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more helpful lessons from your textbook. Thanks for watching, and remember, being smart and calm is sometimes the best superpower. See you in the next video. Bye bye for now.